प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस को आज संबोधित किया है और जितने भी लोग यहाँ पे आए उनमें बड़ी उत्सुकता थी प्रधानमंत्री से मिलने की और उनको सुनने की। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के लोग जो अमेरिका से यहाँ भारत आए हैं वो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। वैद्य साहब, हाउ वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द क्राउड? You all heard Prime Minister Narendra Modi and his vision of 2047. The Prime Minister, as always, is very enlightening to hear the Prime Minister speak, address the gathering, and it's indeed a privilege to attend this 18th edition of Pravasi Bharatiya Divas here in the divine land of Lord Jagannath. So, on behalf of the Federation of Indian Association, along with our President Sorin Parikh, immediate past President Dr. Avinash Gupta, all of us, all 20 plus folks that have traveled all the way from America, we are proud to see our brothers and sisters thrive. It is for most of us, if not for all of us, is the first time in this divine land, the great state of Odisha, and we take a message of the beauty of Odisha to be cherished by others back in our homeland now, from our motherland of India. Prime Minister has also, in his speech, have asked all the people who have come across that you have to bring some other tourists also. No, they have given you a task. So we try to bring. We are 20 plus. We try to multiply every 2 years. What we have to work on, which is something that is in the pipeline, so to speak, is spreading the word through mainstream America and Americans and engaging them more. Hopefully with the faster planes and the travel times reducing in the next decade or so, that dream of Prime Minister will get accomplished, where the hall will be filled with 50% Caucasians. Okay. आप बताएं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भाषण उन्होंने दिया, जो उन्होंने भारत के बारे में बात की और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाहर का जो डायस्पोरा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जुड़ाव भारत के साथ बाहर के लोगों का? फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की हर वक्त एक ही कोशिश रहती है कैसे भारत और अमेरिका को साथ में लाए, और प्रधानमंत्री एक रीज़न है हम लोग यहाँ पे आते हैं, वो हमें एक्नॉलेज करते हैं सभी प्रवासी भारतीयों को एम्बेसडर ऑफ इंडिया। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस वक्त उड़ीसा गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दे हैव होस्टेड अस वेरी वेल, they welcome us very well, and they have offered so much to see the best part of the India. ये जो पूरी कवायद है, जो पूरा टास्क है प्रवासी भारतीय का, इसमें एक बड़ा मेजर रोल बिजनेस का भी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको लग रहा है कि भारत में निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा? So definitely, first of all, I want to thank Government of India, Prime Minister Modi and Government of Odisha for facilitating such a big celebration here. This definitely brings a lot of Indian diaspora and also their colleagues, their American diaspora together, and they attract them to come here to see what India is doing, how they are progressing. So this is a big platform to showcase our culture, heritage, and also what India is best for. And it is definitely giving a lot of opportunity for business, tourism, and all other tasks of India. What is your take, sir, on Prime Minister's speech? काफ़ी अच्छा था। वो तो हमेशा टूरिज़्म पर जोर देते हैं। आज जब भी हम लोग आए हुए हैं यहाँ, तो कल हम लोगों ने श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया, फिर कोणार्क टेम्पल गया। यहाँ इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, उनका जोर रहता है कि आप लोग तो आइए ही, अपने साथ कुछ अमेरिकन को भी लाइए। प्रधानमंत्री ने कहा है ये वाली? यस, हमेशा बोलते हैं कि 5 आदमी को कम से कम लेके आइए। तो हम लोग का तो FIA का काम ही यही है कि इंडियन डायस्पोरा को हेल्प एंड सपोर्ट करना अमेरिका में और अपने मदरलैंड को शाइन कराना। ठीक। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं। मैं देखता हूँ कि फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है प्रधानमंत्री मोदी की, और मैं सुबह भी कई लोगों से बात कर रहा था जो ओमान से आए हुए थे। वो बहुत कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का ऑरा इतना कमाल का है कि सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं। दैट्स ट्रू। हम लोग भी, ये मेरा फर्स्ट ईयर है प्रवास भारतीय इवेंट मैंने अटेंड किया है, बट इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। एंड एज प्रधानमंत्री सेड दैट व्हेन वी कम टू आवर मदरलैंड, इफ एवरीवन प्लांट one tree into this motherland, then after 10 years it will make a big impact. And Federation of Indian Association also does
Diwali soup kitchen in India too. So for this year, we will be doing something regarding this plantation, what Narendra Modi ji asked us to do it. So it was a very good experience. You plan to come next year as well? It won't be next year, it will be on Yeah. a year after. Yes, Yeah. definitely. Yes. Yes, it's been great experience for us. और आप लोग भी घूमने गए थे जो सन टेम्पल है और भगवान जगन्नाथ? Yes, we did visit the temple and भगवान के दर्शन. How was the experience? It was really good. बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट इतने अच्छे ऑर्गेनाइज करा हुआ है सारा. सन टेम्पल गए, जगन्नाथपुरी गए और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर और देखकर कि पूरे उड़ीसा में जैसे भुवनेश्वर में कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स हो रखी है. मैं रविंद्र जैन, वैसे मैं इंदौर से हूँ लेकिन अभी करंटली म्यांमार बर्मा में रह रहा हूँ. प्रधानमंत्री का भाषण ओजस्वी था, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा और हम लोग जो प्रवासी लोग हैं उनके कंट्रीब्यूशन में भारत के जो विकास हो रहा है उसके योगदान को सराहा और जो उनका विकसित भारत का 1947 का विज़न है उसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे. और जैसे उन्होंने हम लोगों को लिए एक टास्क दिया है कि जब हम अगली बार भारत आएँ तो केवल हम भारतवंशी नहीं और 5 म्यांमारिया और हमारे दोस्तों को लेके आएँ. इससे भारत में टूरिज़्म बढ़ेगा, उससे हमारा बिज़नेस बढ़ेगा. और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इंदौर से हूँ तो लास्ट टाइम का प्रवासी भारतीय दिवस के बाद इंदौर में जो ग्रोथ आया है हमें लगता है ऐसा ग्रोथ भुवनेश्वर में भी आएगा. धन्यवाद. आई एम नवनीत कृष्णन फ्रॉम मलेशिया कोला लंपुर. आई एम द मीडिया ऑफिसर फॉर द डेप्यूटी मिनिस्टर Saraswati Kandasamy. This is a to see Indians throughout the world attend this Pravasi. Just now I heard the speech of the Prime Minister. It was a very meaningful speech Prime Minister have given to all over the Indians throughout the world. Thank you. My name is Vijay Banda from Dallas, Texas, USA. Happy to be part of this Indian diaspora here. As my guru says, Indian diaspora has the strength to connect the ancient parampara. And we are trying, as we spread Bharatiyata, one of the key initiatives that we are working on is how to really make and instill a new mindset in youth. भारत माता की जय. वैसे तो मैं यहाँ पे 2010 से प्रवासी भारतीय सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से आए और उन्होंने एक हमेशा ये कहा है भी आप जब भी भारत आओ तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कम से कम 5 लोग तो जरूर लेके आओ. तो इस बार मैंने इंडो इटालियन कल्चर एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से पूरा एक ग्रुप इटली से लेके आया हूँ और जिसमें बाकायदा और सभी इस बात से बड़े प्रभावित हैं भी ये जो प्रोग्राम है हमें अपने परिवार और अपने भारत से जोड़ता है. बड़ी हमें खुशी हुई इस बात की और आज जो इसे सारा सम्मेलन में मैंने देखा बड़ी ही मुझे खुशी हुई. और इससे आप ये कह सकते हो भी वो भी टाइम था जब हम इटली में हम थे तो हमें ये कहा जाता था भी आप लेबर के तौर पे यहाँ पे आते हो. लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद 2014 के बाद अब जब भी मैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आता हूँ तो काफ़ी ऐसे वहाँ की कंपनीज़ हैं जो चाहती हैं भी हमें भी साथ लेके चलो, भी हम भी इंडिया में जाके कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट या हमें कोई ना कोई काम मिले. इस बात का बड़ा गर्व और खुशी महसूस होती है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की उपलब्धि बढ़ाई है और हमारा मान विदेशों में बैठ के बढ़ाया है. हमेशा हम उनके आभार रहेंगे. भारत माता की जय. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर है. मैं भी इटली से आया हूँ और हर साल जब प्रोग्राम होता है इधर आता हूँ तो बड़ा गर्व महसूस. प्रधानमंत्री ने 2047 का विजन भारत के आगे रखा है. हाँ जी. और उसमें आप लोगों का भी सहयोग की उन्होंने दरखास्त की है. बिल्कुल बिल्कुल. जो बाहर का डायस्पोरा है वो किस तरीके से मदद करेगा भारत की एक विकसित भारत बनने में? बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने बोला है 2047 में बोला है, मेरे ख्याल में जिस हम स्पीड से चल रहे हैं वो उससे पहले ही पूरा हो जाएगा. क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई पहले हम 22 साल से इटली में हैं, पहले जो कोई मिनिस्टर आता था हमको पता ही नहीं चलता था. अब कोई भी मिनिस्टर आता है, पीछे जयशंकर जी आए हैं, उसके पीछे राजनाथ सिंह जी आए, कोई भी प्रोग्राम था हर जो इंडियन एम्बेसी है हमको इनवाइट करती है और हमको बताती है. मोदी जी ने भी आज अपने भाषण में कहा है आप जो करना चाहते हैं आप एम्बेसी में जाइए, वो आपकी हर तरह से मदद करेगी. पहले इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है और आज उड़ीसा की धरती पर पहली बार हमको आने का मौका मिला है. मोदी जी के कारण हम उनके धन्यवादी हैं. बहुत अच्छा लगा. और हम पंजाब से हैं, जो हम पंजाब में नहीं देखते थे तो इधर आके मेरे को इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ पंजाब में भी ऐसा हो. पर चलो टाइम लगेगा, पर बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है
तो मेरे ख्याल में जो आपने पहले किया है 2047 में, उससे पहले ही ये हो जाएगा। और मोदी जी हमारे साथ हैं, वो हर वक्त कुछ ना कुछ स्लोगन देते रहते हैं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, सबका साथ सबका विकास। आज जब मैंने देखा यहाँ का प्रोग्राम देखा, वो ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। और इधर जो खाने पीने का प्रोग्राम है, उन्होंने सबके स्वाद का भी रेज रखा। जो प्रधानमंत्री इतना नज़दीकी से सबको देखता है, तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको बोला है, जो सबसे जल्दी हो जाए। जो डियास्पोरा की बात की है, बाकायदा एम्बेसी इस विषय में बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, इटालियन लोगों का मीटिंग होती है, और मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी वहाँ से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए इटली से भी आ रही है। हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं कब से दैट हम यहाँ पे आएंगे और मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से, शायद मुलाकात हो पाएगी। एंड वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। आप बताएं मैम। I'm also from Oman. My name is Alpa. We are all excited. We all come in a group from Oman, and I wish we get to meet one-to-one to Modi ji. ठीक है जी। Hello, I am Anita Khimji from Oman, and I am very excited to see our Pradhan Mantri, and I hope we can meet him one-to-one, and he will give the blessing to us. क्या आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? मैं देखता हूँ हम लोग वहाँ पे विजिट करे हैं, हमारे मस्कत में 2 बार आ गए हैं। हम लोगों ने उनको one-to-one मिले हैं, और अभी उनके पब्लिक में देखेंगे उसका जो प्रवचन मिलेगा, that was we are very lucky to hear him personally. What is that one thing जो आपको अपील करती है मोदी जी के बारे में? Modi ji, we can say he is the very good for the nation, and he is bringing our nation up to the whole world. आप भी ओमान से हैं? Yes, I'm Shilpa. I'm from Oman. Super excited to be here. You keep mentioning what is it about Modi ji? His energy and his vision, his aura. So we want to be a part of this. We are so excited. India and Oman have had these best ties. So we are very proud to be representing Oman as well, and excited what Modi ji has to say. Originally Indian, Bharati. कहाँ से हैं आप? हम कच्छ, गुजरात। गुजरात से हैं, तो वो तो मोदी जी का होम स्टे है। Yeah, that's why. हम सब लोग वहीं से मस्कत से ही हैं, और ओरिजिनली वी आर फ्रॉम गुजरात ओनली। उन्होंने तो मांडवी। So we are from Mandvi, and there is some exciting thing happening with Mandvi, and with so we have I don't know if I need to disclose here, but there is a huge setup where we are talking about Mandvi to Oman, Mandvi to Muscat. So we have families who have settled from Mandvi in Oman maybe 350 years back. 500 also. Yeah, even there are some families who had come in 500 years back. So that's the whole. एग्जीबिशन में भी कुछ किया है ना? आज है ना, आज हमारा यहाँ पे ओमान का भी एग्जीबिशन है। वहाँ पे हमारे सबकी फैमिली के सब फोटोग्राफ रखे हैं। तो फैमिली गेट टुगेदर पूरा डिटेल्स है हमारे कंपनी का, हमारा फैमिली का, ये लोग का, हमारा सबका फैमिली का है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? Sir, I'm from Paresh Shah from Oman as well. So we have been there for about 100+ years. Grandfather went to Oman about 100 years back, and the exhibition today is the ties between Oman and India for over 2000 years. So the relationship is very old. We are here to strengthen that relationship going forward. So we are very excited to look and looking forward to meet Modi ji, and the charisma that he carries is amazing. So keep it up, Modi ji. तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत आज बड़े पैमाने पे हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आना है। यहाँ का माहौल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, तैयारियाँ पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं उनको सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं, उसका मुहैया कर रहे हैं, और जगह जगह जो है यहाँ पे दुनिया भर से आए हुए भारतीय डेलीगेट्स आपको नज़र आएंगे। उन सभी लोगों को इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का, कि जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में यहाँ पे भारतीय लोग जो दुनिया भर से यहाँ पे पहुँचे हैं, करीब 50 देशों से लोग यहाँ पे आए हैं, और करीब 4000 लोग यहाँ पे आए हैं जो इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हो रहे हैं। उन लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का। उसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं वो उसका एग्जीबिशन जो लगी है यहाँ पे उसका भी मुआयना करेंगे, और यहाँ पे जो भगवान राम
की एग्जीबिशन है या जो दूसरी चीज़ों की एग्जीबिशन यहाँ पे जो भगवान राम के जीवन के चरित्र के बारे में जो पूरी एग्जीबिशन लगाई गई है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, उसको प्रधानमंत्री देखेंगे, उसको निहारने का काम करेंगे। उसके बाद जो है अलग अलग एग्जीबिशंस दिखेंगी। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, हम उनसे आप कहाँ से आए सर? हम लोग ओमान से आए हैं। आप भी ओमान से आए हैं? ओमान से बहुत सारे लोग आए हैं। हम अराउंड 130-40 लोग आए हैं। 30-40 लोग आए हैं। मैं सलाला से आया हूँ। तो प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं आप? जी बहुत सारे हैं, उन्हीं के इनवाइटिंग पे हम आए हैं। उन्हीं की इनवाइट पे? या पहले तो मांझी साहब को तो जानते नहीं और मोदी जी को सब जानते हैं। या। और तो ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस आप जो है आप कितनी बार आप आ चुके हैं? ये सेकंड टाइम है मेरा। लास्ट टाइम टाइम इंदौर में हमने अटेंड किया था। मेरा नाम राकेश झा है। मैं वहाँ इंडियन सोशल क्लब का प्रेसिडेंट हूँ और हम सलाला में हैं। और सलाला का वेदर और भुवनेश्वर का वेदर सेम है। तो लोगों से यहाँ मिलने हैं और लोगों को वापस सलाला के लिए ले जाने भी आए हैं। आपके ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए अभी ये सलाला के। तो कुल मिला के कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है और उन्हीं को सुनने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उनमें खासी उत्सुकता देखने को मिल रही है। अशोक के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, भुवनेश्वर।